क्या था जी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ जी, आप सुनाएं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर हम एंजॉय कर रहे हैं ये मैंने अभी गूगल लगाया तो उस पे गेम लग गई है। ये पता नहीं क्या चीज थी। नहीं सर, काफी हम एंजॉय कर रहे थे। तो मैं भी एंजॉय कर रहा था, अब आप ज्यादा एंजॉय करें। ले जी, अब आप एंजॉय करने का टाइम मेरा है, तो जल्दी से अपने अपने प्रोजेक्ट्स निकालें जी। जिसने प्रेजेंट नहीं किया अभी तक तो वो आ जाए जी, ये प्रेजेंट करे आज। सर हमारा हैदर ग्रुप जी कौन सा ग्रुप करेगा? हमारा हैदर ग्रुप सर। हाँ जी, जो भी ग्रुप है सबसे पहले स्टार्ट करें। मैंने ऑप्शन दे दिया आपको। सर ये कर रहे हैं, बस मेंबर का ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा आयशा, आपका ग्रुप है सारा? यस सर। सर चलें आप मेरे स्टार्ट ग्रुप में कर तो दें। 2 ही हैं, मैं और जुनैर। अच्छा, ये आयशा तारिक का ग्रुप तो पूरा है ना? सर हमारा सर मैं पूरा। अपने ग्रुप की बात बता रही हूँ कि हम लोग 3 थे ना, तो मुकद्दस शहजादी ने फ्रीज करवा दी और हम 2 ही हैं, जुनैर और मैं। जी सर हम पूरे। अच्छा चलें, आप लोग पूरे हैं, इसके अलावा कौन सा ग्रुप कंप्लीट है? सर हमारा है। आयशा एक काम करो, अच्छा, आप फिर एक आप फर्स्ट पे दे दो, सेकंड पे मैं दे देती हूँ। अमार सर का ग्रुप दे मुशर्रफ, देता है। एहसान और आसिम। नहीं आयशा, आप दे दो चौधरी, एक प्रेजेंटेशन, सेकंड बाकी खामोश हो मैं जाए स्टार्ट सारे, कर लेती हूँ। खामोश हो एक्चुअली आई जाए। एम वेटिंग फॉर द अमार। चौधरी हमजा जावेद, चौधरी जी सर। आप सबसे पहले आपने लीड ली है, सबसे पहले आपसे। जी सर। जी सर, हमारा हैदर ग्रुप है। आयशा अहमद और मैं, हमारा हैदर और शहजादी मुख्तार है। अच्छा, अब ये है इस तरह कि आप लोगों के पास 25 मिनट है, 25 मिनट में कंप्लीट करनी प्रेजेंटेशन, ठीक है? जी सर। ठीक हो? ठीक है, ये शेयर स्क्रीन कर दी ठीक है, है सर। आप स्टार्ट करें, अल्लाह का नाम ले। आयशा स्क्रीन शेयर करो। आयशा क्लास में हो? शहजादी है क्लास यस में? जी जी हमजा मैं कर रही हूँ, बस जस्ट काइंडली गिव मी 2 मिनट्स। ठीक है, ओके। सर अलाउ मी टू, मैंने स्क्रीन शेयर करनी है सर। बेटा मेरी तरफ से काम अलाउ हो है नहीं रही। स्क्रीन शेयर, मैं अपनी स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है?
Share presentation open करो. Amar, are you in class? Yes, I am, Arsha. I'm ready. Please proceed. Yeah. Sir, shall we start? Yes. जी बेटा आ गया है आपको. Thank you so much, sir. Okay, so everybody, assalamu alaikum, and especially to my class fellows and my sir as well. Sir, today we shall be providing you the presentation on our companies which we have worked on, and I would like to introduce you to them first of all. The very first company that we have is known as GSK, GlaxoSmithKline, very famous pharmaceutical industry company in the world. Now, when we talk about the introduction, it was basically created in January 1st, 2001 through the merger of Smith, Kline and French of Pakistan Limited. Now, what the basic purpose of GSK is to provide the major pharmaceutical products to their customers throughout the world and improvise the consumer healthcare. Now, our second company is Abbott Limited. This is also one of the most giant pioneers of pharmacy in medical industry. Now, when we talk about Abbott, it actually basically improvises on heart health products. And for us, what we have done, sir, if we talk about the introduction, we have, alhamdulillah, completed our project on their financial analysis. Let me provide you the basic information of what we shall be providing the information on. The purpose of this project is basically to analyze and compare the financial statement of two companies which belongs to same sector. This type of information is useful to stakeholders, including investors, managers, competitors, customer companies selling to those companies. Now, there are four major statements that we will be working on. The very first one, techniques, I'm sorry. The very first one, we will be providing the information is on vertical analysis, then horizontal analysis, ratio and trend analysis. Initially, the very first thing which I would like to introduce is the method, which is change in rupee and percentage method. Now, the formula for that is new year minus base year is equal to difference and divided by the base year. So in our financial report, we will be able to provide you the numerical results on that. Then I will provide you some more information on analysis of long-term creditors, analysis by short-term creditors, analysis by working capital ratios, and last but not the least, analysis by common shareholders and management. Now, coming to the conclusion, I would like to initially start off with the change in rupee and percentage method. Now, first of all, sir, and my respected fellows, I would like to provide you the income statement, as you can see, of Abbott Private Limited Company, which I'm providing you the information of year 2018 and 2019, which represents their percentage. Now, if I were to look at the sales for 2018, we can see in Abbott, they were able to achieve a sales profit of 29 million. And in 2019, they were able to get the value of 30 million. So therefore, they were able to achieve, there is a percentage change of 1%. And moving forward, cost of sales, as we can see, also increased because eventually when sales were increasing, cost of sales also increased because of the work being performed. Therefore, unfortunately, in that tenure, the gross profit for 2018 and 2019, if we make a comparison, for gross profit, it was 9801, so it's 9 million. And 2019, it's 8 million. So there's a negative impact of 13%, which means the gross profit was reduced. So moving forward, selling, I should just need to complete with the income statement, please. Selling and distribution expenses, as we can see, 4503, actually 4 million. And then there is a difference in 2019 of 5 million, which is 12%. And that's automatically a rise because we, unfortunately, due to the negative impact on gross profit, the selling and distribution expenses were impacted. And as we can see, as a whole, in administration expenses, other charges, other income as well, we have a negative grasp, which means that the company was not throughout in a very good condition if we look at the current situation of 2018 to 2019.
So moving forward, I would like to provide you the information of GSK. Aisha, if you can please, move the screen. Okay, so GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Pakistan Limited income statement. So talking about revenue from contracts with customers, there was a difference in 2018 was 14 million. And in 2019, it rose to 16 million, which was a difference of 9.6%, which was a very good change. And cost of sales eventually increased as well. And the gross profit was also increased. Therefore, the company was making a very sufficient profit. Selling, marketing, and distribution expenses were rose to 24 million, but in 2019, the ratio was 27 million, which was 12.20%. So that was automatically providing the company a very good background and was also making the investors attracted towards the company. Administrative expenses, we can see that as well. There has been a minor negative impact. So other operating expenses, we can see that as well. In other income, there's a negative impact too. So Aisha, if we can show some other documents on this, and if not, then we can proceed. Okay, I would like to call upon my next member to provide the information on vertical analysis, please. Shehzadi, are you in class? जी क्लास में. Please start. अस्सलाम वालेकुम, आई एम शहजादी मुख्तार. और इसमें जैसे वर्टिकल एनालिसिस बताया गया. वर्टिकल एनालिसिस का जो बेसिकली हम क्यों करते हैं एनालिसिस, इसमें ये होता है कि हमें वर्टिकल एनालिसिस में ऊपर से नीचे कंपैरिजन किया जाता है. और इसमें हम सेल्स नेट को बेस ईयर लेते हैं, क्योंकि सेल्स नेट का ही हम परसेंटेज निकालते हैं. बाकी जितने भी हमारी अमाउंट्स होंगी जो इनकम स्टेटमेंट में होती है, जैसे कॉस्ट ऑफ सेल्स वगैरह. तो इसका वर्टिकल का मकसद ही यही होता है कि हमें अपने एक्सपेंस पता लग जाते हैं कि एक्सपेंस हमारे इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं, ताकि हम जो अननेसेसरी एक्सपेंस होंगे उनको कवर कर सकते हैं और अपने नेट प्रॉफिट को किस तरह मैनेज कर सकते हैं. तो यहाँ पर हमने 4 years का एनालिसिस किया हुआ है, 2017, 18, 19 एंड 20. और इसमें जैसे कि नजर आ रहा है कि जो सेल्स का कॉस्ट ऑफ सेल्स है 65% 2020 में डिक्रीज हुई है एज कम्पेयर 2019 के, क्योंकि 19 में 71 थी. तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट है एज कंपनी के कि उन्होंने उसको कम किया कॉस्ट ऑफ सेल्स को. जैसे ही इन्होंने कॉस्ट ऑफ सेल्स को कम किया तो उनका जो नेट प्रॉफिट है वो 13% इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर 2019 4.3 था. तो ये एक अच्छा इनके लिए है कि उन्होंने कॉस्ट ऑफ सेल्स को थोड़ा सा कम किया है. अब जो आयशा ग्लेक्सो कंपनी निकालना शीट, अगर हम इसका कंपैरिजन ग्लेक्सो की इनकम स्टेटमेंट से करें तो इसमें जैसे कि नजर आ रहा है कि इसका स्टार्ट ही जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो इंक्रीज हो रही है. लास्ट में जाके 2019 में 69% डिक्रीज हुई है, लेकिन 2020 में अगेन इंक्रीज हुआ है 73%, जिसकी वजह से 6.35 जो नेट प्रॉफिट है वो डिक्रीज हुआ है. तो एज कम इसमें ग्लेक्सो कंपनी है जो वो कम प्रॉफिट जनरेट कर रही है. नेक्स्ट बैलेंस शीट करना एबिट की. आशा एबिट की बैलेंस शीट. जी मैं ये एबिट की खोली है मैंने आपकी जी. अब एबिट की बैलेंस शीट में जो करंट एसेट्स हैं टोटल वो इंक्रीज हुए हैं ड्यू टू कैपिटल एक्सपेंडिचर. और क्लियर नजर नहीं आ रहा, आपने देखना है, ये ले आप नजर आ रहा है आपको? जी आयशा नजर आ रहा है. अच्छा, इसमें जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर एक्सपेंडिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी. और जो इसमें टोटल एसेट्स हैं वो भी इंक्रीज किए हैं ड्यू टू हायर कैश एंड बैंक बैलेंस वर्सेस लास्ट 3 years. और इसी तरह अगर हम देखें कि टोटल जो इक्विटी है ना वो डिक्रीज हो रही है एज कम्पेयर 2019, जो 64 थी वो 62.5 हो गई है. और इसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी है वो भी इंक्रीज हुई है ऑन अकाउंट ऑफ लीज लाइबिलिटी एंड स्टाफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स. लास्ट में जाके टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज जो है वो इंक्रीज हो रही है ऑन अकाउंट ऑफ लीज लाइबिलिटी एंड स्टाफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स. इसी तरह जो अगर हम नेक्स्ट करना वर्टिकल की
नहीं नहीं, horizontal? ग्लेक्सो की बैलेंस शीट। अगर हम ग्लेक्सो की बैलेंस शीट देखें तो वो स्टार्ट से ही इसका स्टार्ट से ही जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो डिक्रीज हो रही है 33.15, और जो इसका टोटल इक्विटी है वो भी एज कंपेयर 2019-2020 में डिक्रीज हो रहा है। तो एज कंपेयर अगर हम दोनों को करें तो एबट कंपनी गुड अच्छी जा रही है पोजीशन में, क्योंकि उसने कॉस्ट ऑफ सेल्स कम की है, अपनी इक्विटी को मेंटेन किया है। और नेक्स्ट ऐड करना हॉरिजॉन्टल। Let me pass to Abbott के लिए channel. Here you go. अब जैसे कि हॉरिजेंटल हम क्यों एनालिसिस करते हैं, हॉरिजेंटल में ये होता है कि हम बेस ईयर का करंट ईयर से कंपैरिजन करते हैं। इसमें हमें पता लग जाता है कि हमारी प्रीवियस कंपनी में कितनी सेल्स हुई थी और अब नेक्स्ट में कितनी परसेंट कितनी अमाउंट चेंज आया है। तो इस चेंज को देखने के लिए हम पैरेलल कंपैरिजन करते हैं 2 ईयर्स का, तो इसको हम हॉरिजेंटल एनालिसिस कहते हैं। अब इसमें हॉरिजेंटल एनालिसिस में हम 2070 को हमने बेस ईयर लिया और 3 इयर्स का कंपैरिजन किया 2018 से 19-20। और इसमें जैसे स्टार्ट में नजर आ रहा है कि आशा थोड़ी सी क्लियर करना, तो 2020 नजर नहीं आ रहा, क्लियर पिक्चर। अब देखिए जी 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 आ गया। अब इसमें हॉरिजेंटल में ये है कि स्टार्ट से ही ये माइनस में जा रही है। 2017 में 19 में ग्रॉस प्रॉफिट इसका माइनस में जा रहा है, लेकिन जैसे 2020 में आई है इन्होंने सेल्स को इंक्रीज किया 35%, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स एज कंपेयर सेल्स के थोड़ी सी ज़्यादा है, इनको थोड़ा सा कम करना चाहिए अपनी सेल्स को। लेकिन एज कंपेयर बाकी प्रीवियस ईयर माइनस की बजाय ये 21% गुड है। लेकिन एंड में इनका जो प्रॉफिट आता है वो 8% आता है एज कंपेयर बाकी कंपनी के। लेकिन उन्होंने अच्छा गिव अप किया कि उन्होंने नेट प्रॉफिट को इंक्रीज किया। और इसके बाद दूसरी कंपनी ग्लेक्सो की कंपनी ओपन करना। जी मैंने कर दिया। और ग्लेक्सो की कंपनी में जैसे कि 2019 में क्योंकि रेशो ज़्यादा थी और इसमें अमाउंट्स का 2019 में 61 जो है ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, जबकि 2020 में ये इंक्रीज होकर 72% हो गया। ग्लेक्सो कंपनी ने अच्छी मतलब अपनी परसेंटेज ग्रॉस प्रॉफिट की है। लेकिन अगर हम नेट प्रॉफिट को देखें 2019 से लेके 2020, आयशा क्लियर शीट दिखाना, हाफ नजर आ रही है, नजर ही नहीं आ रहा नेट प्रॉफिट शीट को नीचे। जी और बस ठीक है। तो इस तरह अगर ग्लेक्सो को देखें तो वह एबट की निस्बत इसमें हॉरिजेंटल एनालिसिस में बेटर है। बैलेंस शीट के अगर नीचे कमेंट आयशा बैलेंस शीट का कमेंट करना, नीचे वाला बैलेंस शीट का कमेंट उसको रीड करना है। आई हैव डन। नजर नहीं आ रही शीट, कमेंट्स वाली साइड मैंने नीचे कर दी है लास्ट। शिलादी, अब आ जाएगी, देखिए अब आ रही है। जी जी आ रही है। अब इसमें यह है कि ग्लेक्सो स्मिथ कंपनी में एबट की निस्बत, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट भी अच्छा था नेट प्रॉफिट भी, तो इसमें जो नॉन करंट ऑफ लाइबिलिटीज है वो इंक्रीज हुई है ड्यू टू स्टाफ रिटायरमेंट्स बेनिफिट्स और एडिशनल डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। और इसके अलावा जो इंक्रीज हुआ है करंट लाइबिलिटीज में ड्यू टू अक्रूड लाइबिलिटीज कस्ड बाय डिले इन इनवाइसिंग। और इसके अलावा इंक्रीज इन करंट एसेट्स मेनली ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज में उन्होंने इंक्रीज किया, जिसकी वजह से उनके करंट एसेट्स इंक्रीज हुए हैं। और इसी तरह इन सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट स्लाइड करना, वर्किंग कैपिटल रेशो। कैन यू सी इट? क्लियर फाइल नहीं नजर, अब आई है जी क्लियर फाइल। ये मैंने कर दी थी। जी जी सर, ये दादी आप कर रही तो मैं करूंगी ये एक्सप्लेन। ये मेरे पास है, आपकी नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म।
ओके अब एबेट की कंपनियां जो नेटवर्किंग कैपिटल रेशियो, जैसे कि वर्किंग कैपिटल का मतलब ही यही होता है कि हम जब अपने करंट एसेट्स में माइनस करंट लाइबिलिटीज करते हैं तो हमारे पास टोटल जो कैपिटल आता है उससे हमें ये पता लगता है कि फ्यूचर में हम अपने शॉर्ट टर्म्स डेट्स को रिकवर कर सकते हैं। हमारे पास कंपनी में कितना पैसा है, इनफ पैसा है कि हम अपने जो आने वाले शॉर्ट टर्म्स डेट्स हैं उनको पूरा कर सकें। तो यहाँ पर जैसे कि करंट एसेट्स ज़्यादा है एज कम्पेयर लाइबिलिटीज का पे करने के बाद भी नेटवर्किंग कैपिटल अच्छी अमाउंट में है, तो ये इजीली अपने पे कर सकते हैं। और 2020 में इंक्रीज हुआ है नेटवर्किंग कैपिटल। और आगे जब हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की बात करते हैं तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब भी यही होता है कि अपनी इन्वेंट्रीज में से कितने परसेंट हमने सेल्स किया है, कितने टाइम्स हमने सेल्स किया है, उस डेज को हमने काउंट करना होता है। तो यहाँ पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 2019 में 4.13 टाइम्स सेल्स हुई है और 2020 में 4.80 टाइम्स सेल्स हुई है, तो इंक्रीज हुई है कुछ परसेंट। और इसके बाद जब हम रिक्वायर्ड सेल इन्वेंट्री करते हैं तो 365 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 88.38 डेज में ये कितनी सेल्स हुई हैं, 4.13 एंड 4.80। तो अगर इनको देखा जाए कंपैरिजन तो it indicates the company is excellent at selling its stock and making profit. They sell their stock after एवरी 80 to 90 डेज में ये अपना 4.13 और स्टॉक कर रही है। अगर हम ग्लेक्सो की बात करें तो ग्लेक्सो एबट की निस्बत अच्छी जा रही है, कम डेज में इन्होंने ज़्यादा सेल्स की हैं, सेल्स टाइम इनका ज़्यादा है। जैसे कि 2019 में दिखाएं 4.5 टाइम्स किया है और 81 डेज में, लेकिन 2020 में इन्होंने 73 डेज में 5 टाइम्स सेल्स किए हैं। ये अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो GlaxoSmithKline company is more efficiently selling and dealing with its stock than Abbott company, and they have impressive inventory turnover ratio with is 5 and indicates they sell and restock their inventory every 1-2 months. Thank you so much. Next, Hamza, आप अपनी स्लाइड करें। थैंक यू सादी। माय नेम इज चौधरी हमजा जवेद। मैं आपको बताऊंगा कंपनी की शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स का हम 2019 और 2020 का कंपैरिजन करेंगे, जिसमें करंट रेशियो का सबसे पहले फार्मूला हम बताएं, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। जो सा हमने इसका आंसर निकाला है 1.30 रेशियो 1 टाइम्स, और क्विक रेशियो क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो इसका जो सा फार्मूला आंसर निकला 0.78 रेशियो 1 टाइम्स। और 2019 का जब हमने रेशियो को निकाला है करंट रेशियो और क्विक रेशियो, जो सर करंट रेशियो का इसका फार्मूला लिखा है 1.38 रेशियो 1 एंड क्विक रेशियो का 0.73 रेशियो। जब अच्छा नीचे करना, ये हमने सारी इसकी वर्किंग की हुई है। जब इसके हम कंपैरिजन करते हैं, जेएस कंपनी से स्लो करंट रेशियो ऑफ 1.3 which refer to equal to slow rate of solvency comparative to Abbott Limited ratio. Quick ratio is 0.73 ratio 1 which is less than 1 and describe the company is not able to सर शोर आ रहा है। हमजा आप बोलो, वी हैव लेस टाइम, आप बोलते रहो। ये शोर आ रहा है, आप बोले हमजा, इट्स ओके। ग्रांट रेशियो अच्छा सर, की आवाज नहीं आ रही, अंदर की आवाज बहुत मिस हो रही है। सही शोर आ रहा है। हमजा यार अपना माइक म्यूट कर लो यार। चलें, अब आप बोलें। जी बेटा, सर शोर आ रहा था उस टाइम। हमजा कैरी ऑन। मैंने तो नहीं, शोर मेरी तरफ से शोर नहीं आ रहा। सर वो किसी बच्चे का माइक ऑन था। अच्छा चलो ठीक। उसके बाद अगर कंपैरिजन किया जाए, करंट रेशियो ऑफ एबट कंपनी ऑफ लास्ट 2 ईयर show that they are capable to of paying it is its long short term liability which with their asset approximately 2 times. Quick ratio is 1.1 ratio 1 that indicate a stable situation where they are able to pay their debts but not more. आशा आगे स्टार्ट करना। अब मैं बताऊंगा लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स। लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स का भी हमने
2019 और 2020 का कंपैरिजन किया हुआ है, जिसमें डेट रेशियो और इक्विटी रेशियो का फार्मूला लगाया हुआ है। डेट रेशियो का जो सा हमारा 2019 का 36% है और क्विक रेशियो का 64% है। आयशा नीचे करना कमेंट्स पे इसके। डेट टू इक्विटी रेशियो इंडिकेट्स कंपनी डेब्ट्स Abbott Limited is showing less debt and more equity. They are enough capable to paying its debts by their available equity. But in JSK, debt to equity ratio is seen risky for and investor become it's just that the company is financially sufficient amount of growth through growing. Now I am invited to Aisha Tariq the further proceed. Aisha Ahmed. Thank you, Aisha Ahmed. Assalamu alaikum, I'm Aisha Ahmed, and I'm going to talk about the multiple ratios of these two companies. Overall, I'm talking about the gross profit ratio, net profit ratio, operating and return on the capital employed. One by one, in Abbott, profitability ratios of company in general have improved versus last year. Gross profit margin improved to 34%. It was 28.3 in 2019. Net profit margin increased to 12.19% versus 4.3 in the last year. Mainly on account of the product mix, line of products, and the review of the products. If you see the GSK company, we can see in GSK ratios of company decreased mainly due to the currency devaluation. Gross profit margin declined to 26.85 versus 30% in 2019. Net profit margin dropped to 6.36% in versus 7.71 in 2019, as you can see here. If we talk about the return on capital employed in the Abbott, yes, in the Abbott, it is 20. Actually, it is 27 in the actual, but according to our calculation, is 25. It was 9.5 in 2019, and in 2020 is 25%. Return on capital employed tells how good you are at making profit by using your capital. In Abbott Limited, it was 9.5, and in JSK, it is reduced by 3%. It's become 26, I think. Yes, it's 26 was in 2019, and 2020 is 22. In actual, it's 23. If we talk about the dividend ratios, dividend yield ratios, dividend yield ratio is 1.7 in 19 and 5.3. It's very good in the 2020. As we can all see that in 2019, Abbott was in loss, but in 2020, they come back very efficiently. And for Abbott yield, fixed asset turnover ratios of these both companies are measures that how effectively company generates sales from its fixed assets. In Abbott, improved company generates 3.89 in 2020 from 3.65 in 2019, mainly due to the sales growth and less operating expenses. But in JSK, actually मुझे ये बार-बार ये scroll करना पड़ रहा है. Yes. In JSK, it was 5.660 in 2019, and in 2020 it became 5.70 because into the significant increase in sales during the year. And next come to the common shareholders analysis. If we analysis by the common shareholder stock, first of all, we talk about the return on equity, especially used for the comparing the performance of two companies in the same industry. It measures the ability of generating income from the equity available to it. If we see the Abbott company has showed exceptional growth in 2020, it becomes 29% versus in 2019, it was only 9.7. In JSK, it was 27.94 in 2019, and it decreased by 4% in 2020. And if we talk about the earning per share, it was 9.7 for Abbott, and now it's 29%. And it was 27 for JSK, and now it's 24%, which is decreased by the way. And price earning ratio shows that what is the market is willing to pay today for a stock based on its past and future earnings.
It declines to 16.30 in 2020 from 33.64 in 2019, mainly due to the not highly related to earnings, and it's not overvalued stock. Versus in JSK, it has increased 24.59 in 2020 from 23 to 88, in mainly decrease in the price per share. And analysis by management, return on investment. Return on investment tells that which is more impressive, that in Abbott 25%, which is more impressive than JSK, it's 22%. Indicates that Abbott is getting more returns on their investments. If we talk about the total asset turnover ratios of Abbott, increased slightly to 1.55 in 2020, and it was 1.47 last year due to the sales growth in sales during the year. In JSK, it's decreased to 1.918 in 2020. From the last year, it was less. But the last year, they have increased the capital expenditure, which brings so much, you can say, boom to their company. Return on assets mean how much profit you are generating from your assets. So talking about these two companies, Abbott is showing more better returns on asset, which is 18%. And in JSK, it's only 12%. And in the last, in our final conclusion, I would like to say that me and my comrades wants to invest in Abbott Laboratories because it has less risk here. Its debt equity ratio is so good. It has more assets. They have planted recently in the 2020s. They have invested 2 more plants for the production, which has increased their sales. Their solvency ratios are up to the mark, and their debt equity ratio is so good that they are not borrowing so much. Comparatively from JSK, we are going with the Abbott Laboratories. They are more stable to invest in. Thank you, sir. गुड प्रेजेंटेशन बेटा, बहुत अच्छे। और एबट के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, GlaxoSmithKline में नहीं कर रहे? ठीक है, दैट्स गुड, दैट्स गुड। अच्छा जी, नेक्स्ट ग्रुप अब कौन सा आएगा? सर अहमद अली ग्रुप। सर आयशा तारिक का था। आयशा तारिक का था, आयशा तारिक का आएगा, उसके बाद अहमद आपकी बारी तीसरे नंबर पे। ठीक है, ठीक है सर। आयशा आ जाइए बेटा। सर ये स्क्रीन शेयर ऑप्शन दी हुई है। आयशा साथ मेंबर कौन है दूसरा आपका? सैयद जुनैर अली शाह। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या बात कर रही हूँ, एमकॉम से मेरा ग्रुप रहता है और एक उमैर तालिब का ग्रुप रहता है। चलो देख लेते हैं बेटा। हाँ, लास्ट पे बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। आयशा स्क्रीन ऑफ करें। ओके ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब हो गया आयशा? जी आयशा हो गया। डन हो गया। Assalamu alaikum to all my class fellows and my respected sir. My name is Aisha Tariq and my group member name is Sayyid Zunair Ali Shah. Today we are here to present our presentation about two companies, textile composite companies. First one is that Sapphire Textile Mill and second one is that Nishad Textile Mill. First one is that the basic purpose of this project is to analyze the yearly trend and change in the textile industry in Pakistan. In this yearly financial statements of companies of same industry, there are 4 main components. First one is that a vertical analysis, horizontal analysis. Vertical horizontal हो गया हमारे पास, और हमारे पास रेशियो एंड ट्रेंड एनालिसिस इसमें हमारे प्रोजेक्ट में होगा। सर स्क्रीन नजर आ रही है? जी आ रही है। ओके, थैंक यू। आ रही है लेकिन नजर कुछ नहीं आ रहा। फिगर्स नजर नहीं आ रही बेटा, बड़ा करें फिगर्स। ठीक है सर। और बड़ा करें बेटा।
ब्राइट करें, ब्राइट बड़ा करें, इसे बड़ा। सर और कैसे? चलिए आपको नजर आ रही है तो ठीक है, सर कर रही हमारी खैर है, हम सुन लेते हैं। 1 मिनट आप सुन लेते हैं। जी, आप हमें भी नजर आनी चाहिए। जी बेटा, मैं क्या, हमें भी नजर आनी चाहिए। कोई नहीं, इनको कैरी ऑन करने दो, हम बाद में देख लेंगे। सर अब ठीक है? अब आ रही है नजर? नजर ही नहीं आ रही स्क्रीन। बेहतर है, बेहतर है। चले स्टार्ट करें, अब कोई ठीक है बात ना? नहीं, कोई बात नहीं करेंगे। सफायर टेक्सटाइल में बेसिकली उनकी बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स की बात की जाएगी। फर्स्ट वन, उनके एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट उनकी इंक्रीज हुई है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्यों? क्योंकि उनका जो कैपिटल वर्क इन प्रोसेस था वो इंक्रीज हुआ है। 524 उनकी रुपी चेंज आई है, परसेंटेज उनकी थी 4%। हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक स्कीम है जिसको हम कहते हैं LFTT। उसमें जो है सफायर टेक्सटाइल में ने इन्वेस्टमेंट की है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है उनकी, जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट की तो उनको वहां पे पे ऑफ करने पड़े पैसे, जिसकी वजह से उनकी -644 जो है उनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स उनकी हुई। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस की बात की जाए तो उनको +24% था, -18 हो गया। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स की बात की जाए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेसिकली उनकी डिक्रीज इस वजह से हुई क्योंकि उनकी जो शेयर प्राइस थी ड्यू टू कोविड जो थी, वो उनकी शेयर प्राइस जो है वो डिक्लाइन हो गई थी। अब हम बात करते हैं करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स में बेसिकली जो उनके स्टॉक इन ट्रेड थे, स्टॉक इन ट्रेड जो हमारे उनके सफायर टेक्सटाइल मिलके थे वो इंक्रीज हुए थे कोविड पेंडेमिक में। क्यों? क्योंकि उनकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुई थी ड्यू टू डिक्लाइन इन स्टॉक मार्केट। उनकी जो स्टॉक इन ट्रेड के रेट्स थे, स्टॉक इन ट्रेड इन्वेंट्री जो उनकी थी वो इंक्रीज कर गई थी। लास्ट वन इज दैट उनके टोटल एसेट जो है एज कंपेयर टू 2019 जो है 20 में उनके टोटल एसेट इंक्रीज हुए थे। जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया, उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी की थी जो कि LFT की फाइनेंशियल रिकवरी के लिए थी। उन्होंने वो इन्वेस्टमेंट की। इक्विटी लाइबिलिटीज की तरफ आ जाए तो वहां पर उन्होंने 2019 में 16,038 किया था उन्होंने इन्वेस्टमेंट, जिसके रिजर्व्स और शेयर्स वगैरह को रख के जो 2020 में था वो 16,417 हो गया था। इसका इंक्रीज जो था रुपी चेंज में वो 94 हुआ था। नॉन करंट लायबिलिटीज की बात की जाए तो उसमें लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग जिस तरह की LFTs थी, उसमें उन्होंने क्या किया था कि स्टेट बैंक से उन्होंने क्या कहते हैं अपनी स्कीम्स को, अपने प्लांट्स और मशीनरी को रजिस्टर्ड करवाया, जिसकी उनकी पेमेंट जो थी वो 1428 मिलियन थी, जो कि उनका